कर्नल अप्रोच हुई, तो मैं लिखवा दूंगी आपको। तो अभी तो आपको फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, ये सब अच्छे से टिप्स पे होने चाहिए। ओके, अगर आप अपनी बुक खोलो, द डायग्राम विच शोज where the operating system is placed, you have to draw this in order to fully understand what is a specific operating system placement in the system. Please open your page. Which one is it? Figure 1.1. As I shared the book yesterday, draw this diagram that at the bottommost there is hardware, then comes the layer of OS. On top of it, there are system and application programs in the form of compiler, assembler, linker, loader, database systems, and then we are the users. Everybody got that page? Yes, ma'am. Okay. So, this is the abstract view of the components of the computer system, in which they are clearly showing where is the placement of any operating system that you are working on. Next is, an operating system is also known as resource allocator. Okay. Why is it called resource allocator? It's very closely linked to its functions, that the CPU time, memory space, input output devices, file storage space, everything, all these resources need to be managed. So these are being managed by the operating system. That is why it is known as a resource allocator. So these are the 2 marks questions. The CPU time, memory space, input output devices, file storage space. Okay, all these resources need to be managed. Hence, if they are managed by whom? Operating system. Therefore, it is known as a resource allocator. Next, it is also known as a control program. Why? Because user programs and the system programs have to be managed by the OS. It controls them so that there is no improper use of computer by the user. The user programs lie in a specific area, whereas the system programs lie in a different area. It has to control everything. Like in the college, there is control that people do not loiter around in the corridors, they just go to their classrooms and there is no noise and disturbance. You're not allowed to go into the classes of first years and interrupt them. Similarly, there is a bifurcation between user programs and the space allocated to system programs, and these are managed and controlled by OS. That's why it's known as a control program. So you can write down. Also, user programs
need to be controlled to prevent errors, and improper use of computer. So OS acts as a control program. Next, you can be asked how it does so. ये कंट्रोल प्रोग्राम बनता कैसे है? By providing, the answer is dual mode operation. Am I clear till this point? Resource allocator, control program, everything? Yes, ma'am. Okay, so the hardware solution is the provision of a dual mode operation. Okay, there are two modes. First one is user mode and the other one is kernel mode. डुअल का मतलब दो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक बिट होती है जिसको कहते हैं मोड बिट. हमने मोड वर्ड सीखा है ना सीएसए में, कौन से मोड में वो एम जब जाता है तो किस तरह से ऑपरेट करता है, एडर सब्ट्रैक्टर एंड ऑल. मोड पे डिपेंड करता है उसमें जीरो जा रहा है कि वन. रिमेंबर? Yes, ma'am. हाँ जी, तो वही वाला वर्ड यहाँ यूज हुआ है मोड, कि कौन सा मोड में काम करेगा वो. Write down a bit called the mode bit is added to the hardware of computer to indicate the current mode. So what will happen when the computer is executing user applications? System will be in user mode or kernel mode. I'm asking, when a computer is executing user applications, system is in which mode?
यूजर मोड। यूजर मोड, ठीक है। हमारे लिए जब वो काम कर रहा होता है, जब हम सिस्टम कॉल, जैसे मैं इस समय की प्रेस कर रही हूँ, तो ये सब यूजर अपनी रिक्वेस्ट भेज रहा है जो अंडरलाइंग हार्डवेयर तक ऑपरेटिंग सिस्टम पहुंचा रहा है। सिस्टम कॉल्स कर रहा है वो, एक के बाद एक सिस्टम कॉल होती है। आप कुछ सेव कर रहे होते हो, अपना फाइल फोल्डर बना रहे होते हो, ओपन करते हैं हम कोई डॉक्यूमेंट, ये सब चीज़ें सारे परफॉर्म करता है फंक्शन थ्रू सिस्टम कॉल्स, और ये जाती हैं रिक्वेस्ट नीचे कर्नल तक। तो सिस्टम कॉल जब होती है तो उसके बीच में प्रोग्राम कंट्रोल का उसको ऑप्शन है, इनपुट आउटपुट का, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट का, सिक्योरिटी का, ये सारे फंक्शंस जो हैं ये नीचे हार्डवेयर तक, जहाँ पर हमारा सीपीयू है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, इन तक पहुँचाने का काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल के थ्रू होता है। ओके, ओपन क्लोज, रीड राइट एग्जीक्यूट, ये सारे कमांड्स। ये क्यों बजा था? कोई बच्चा तो है नहीं है। Okay, so whenever we are getting the work done, it is in user mode. And for all the functions, further write down. So for all the functions, OS has to perform like which all device management, फाइल मैनेजमेंट, ये चीज़ें आप हर जगह घुसा देना कि आपको आते हैं। प्रोसेस कंट्रोल, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देयर आर सिस्टम कॉल्स विच आई जस्ट नाउ टोल्ड यू, and the OS performs them in which mode? कर्नल में। कर्नल मोड, ठीक है। जो कोर होता है ना ओएस का, वो कर्नल होता है एकदम अंदर, जो सबसे, जैसे अर्थ का कोर, मैंटल और वो सब पढ़ा है आपने ज्योग्राफी में प्रीवियस क्लासेस में, तो जो सेंट्रल मॉड्यूल है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो कर्नल होता है। इट इज द पार्ट ऑफ द ओएस व्हिच gets loaded first. It remains in the main memory throughout. So it is important for the kernel to be as small as possible, ताकि वो मेमोरी में कम से कम जगह ले, और उसको साथ साथ सारी एसेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है। तो इसलिए it's a platform that consists of specific set of libraries and infrastructure for all the apps to be built upon and interact with each other. देखती हूँ। कर्नल मोड के और नाम क्या क्या हैं स्टूडेंट्स, प्लीज राइट डाउन। इसको सुपरवाइजरी मोड भी कहते हैं, ओके, और प्रिविलेज मोड भी कहते हैं। ओके, तो तीन नाम है इसके, कर्नल मोड, सुपरवाइजरी मोड और प्रिविलेज्ड मोड।
So you can draw the diagram 1.10, transition from user to kernel mode. पेज 22 पे टॉप पे डायग्राम बना हुआ है. पहले वो यूजर मोड में है. It is executing user processes. Then there comes a system call. सिस्टम कॉल होता है तो वो ब्लू ब्लू वाला एरिया कर्नल में चला जाता है. ऊपर यूजर मोड में है तो मोड बिट इसकी 1 है. फिर कर्नल मोड में जाके वो सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होती है, तब मोड बिट 0 हो जाती है. फिर वापस सिस्टम कॉल जब एग्जीक्यूट हो जाती है तो रिटर्न टू यूजर मोड हो जाता है, तब मोड बिट 1 हो जाती है. तो आपको ये डायग्राम बनाना है सबको. Drawn this diagram. डुअल मोड ऑपरेशन का मिला सबको बच्चा? आप लोगों को ये डायग्राम मिला? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो दिस वाज द बेसिक, जो कि आपको कुछ कुछ टर्म्स समझ आ जाएं, इसलिए आई हैड स्टार्टेड इन दिस वे. सो नाउ लेट्स डिस्कस जो चीज़ें पीछे सिस्टम में हमारे इस चैप्टर के छूट गई हैं. तो सबको स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन पता है? ये तो हम कब से बात कर रहे हैं, जो पिछले साल भी मैंने सेमेस्टर में की थी. न्यूमैन आर्किटेक्चर जो होता है कंप्यूटर सिस्टम का, कोई भी बच्चा गूगल से पढ़ के बता दे मुझे, ऐसे तो दिमाग में होएगा नहीं. डिस्कशन हो रही है अब यहाँ पर. बताओ. ये ऐसे क्योंकि चैप्टर में है चीज़ें, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं हम, अदरवाइज इनका कोई वो आएगा नहीं एग्जाम में. देखो इंट्रोडक्शन में आपका न्यूमैन आर्किटेक्चर वर्ड है एक ब्लू ब्लू में, पेज नंबर 10 पे. तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या कहता है हमारे को कि सिस्टम कैसा बना होता है, जिसमें क्या होता है? बाइनरी फॉर्म यूज होती है. किस चीज़ में? मैं तो गूगल से देख. गूगल बाइनरी फॉर्म यूज होती हो तो आपको भी पता डाटा है. स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट आइडिया दैट आर्किटेक्चर पूछ रही इंस्ट्रक्शन. हूँ. वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर टाइप करो, क्या होता है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर? ओके. ओके मैम, वेट. बुक में भी क्लियरली लिखा हुआ है. It first fetches an instruction from memory and then stores that instruction in the instruction register. This instruction is decoded and causes operands to be fetched from memory and then stored in some internal register.
After instruction on the operand has been executed, the result may be stored back in memory. तो ये सारा आप CSA में पढ़ चुके हो, जब पिछले साल मैंने सेमेस्टर में बताया था. यस मैम. याद आ गया? हाँ So मैम, it यहाँ is, पे भी लिखा है, अ कंप्यूटर डिजाइन मॉडल दैट स्टोर बोथ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस हाँ एंड जी, डेटा इन सेम मेमोरी स्पेस. यस. तो यही वाला बनाया था हमने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला, जब डायग्राम बनाया था, डेटा वाला और वो सब यस मैम. उसके नीचे. ठीक है. तो हाँ. अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बताओ, कौन बताएगा? आपके सामने तो सिस्टम है, अब तो सब बता सकते हैं, कोई क्लास में तो हम बैठे नहीं है. फिजिकल में इस समय तो सब बच्चों को सारे आंसर आने चाहिए, मैं दुनिया का कुछ भी क्वेश्चन पूछ लूं. वीडियो ऑन तो मैंने करा ही नहीं हुई. अच्छा, कैश मेमोरी क्या होती है? ये नेक्स्ट डायग्राम बना हुआ है आपका, रजिस्टर्स, कैश, मेन मेमोरी. 1.4 कैश मेमोरी का क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में अभी, लास्ट चैप्टर में जो हमने पढ़ा था. तो CACHE वर्ड सबको आता है अब? व्हाट इज कैश मेमोरी? हाई स्पीड फास्ट मेमोरी, प्लेस्ड बिटवीन व्हाट एंड व्हाट. बताइए, सबको पता है? मेमोरी है कि मैं Can I get some हार्ड ड्राइव fire? के ऊपर प्रिंट कर. हाँ. ठीक है. as CS students, these words you should be knowing very well. So now coming to what is a kernel. It is the central module of an OS. पढ़ के बताओ कहीं से. It is that part of the OS which is loaded first. बूटस्ट्रैप लोडर वर्ड सुना है सबने? क्या होता है बूटस्ट्रैप लोडर? क्या मैं बहुत रो बैंड के लोड़े तेरी माँ चोद दूंगा, भोसड़ी के मेरी बंदी है रिया, सुन रहे हैं? Okay, so this is the kernel that we were talking about. And then in the diagram there also came the word system calls. So you also have to do what are system calls.
So in computing, a system call is how a program requests a service from the operating system's kernel, which it normally is not having permission to execute itself. So there is an interface which acts between the process and the OS. It will help you giving out all the permissions not available to the user whenever we close a file, open, read, write, execute. So this is the system call which sits in between the user interface and the hardware. Mostly it is in the form of a C library or a Windows API. What is the full form of API? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। APIs पे आपने काम किया हुआ है किसी ने? वेरी गुड। API की तो फुल फॉर्म बता दी। तो जब भी हम कोई काम कर रहे हैं तो वो अंडर द स्क्रीन जाकर ये किस में कन्वर्ट होता है? सिस्टम कॉल्स में। ऑपरेटिंग सिस्टम इसको सिस्टम कॉल में कन्वर्ट करता है, वो हार्डवेयर को समझाता है, फिर वापस यूज़र के पास उसका रिजल्ट आता है और वो काम इस तरह से हो जाता है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आपको अगर यू वांट टू राइट अ प्रोग्राम टू रीड डाटा फ्रॉम वन फाइल एंड कॉपी इट टू अनदर फाइल, so first we need the name of the two files. For this also there are system calls. हम दोनों फाइल्स के राइट क्लिक करके नाम देखते हैं प्रॉपर्टीज में और फिर कीबोर्ड से उनका नाम टाइप करते हैं, इसमें सिस्टम कॉल है। जब आप फाइल ओपन कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं फाइल तो एक और सिस्टम कॉल है। अगर कोई एरर हो जाती है तो वो आपको कहता है दिस फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, तो ये भी सिस्टम कॉल के थ्रू हमें रिप्लाई मिल रहा है कि ये आपने गलत करी है। प्रोटेक्शन वाला काम कर रहा है ये, जो हमने अभी शुरू में फंक्शंस देखे थे। कभी कभी आपका प्रॉब्लम जिस तरह से आ जाती हैं, इंटरप्ट और ट्रैप, ये वर्ड भी आपने अभी शुरू में चैप्टर में देखे हैं। इसमें भी मैं डिफरेंस लिखवा दूंगी आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्ट एंड ट्रैप। ओके, पहले हम ये सिस्टम कॉल पूरी कर लें, तो फिर जब फाइनली हमारा कॉपी होने के लिए भी एक सिस्टम कॉल जाती है और जब कॉपी होके क्लोज करते हैं तो तब भी एक सिस्टम कॉल जाती है। सो टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स वी कैन राइट डाउन। प्रोसेस कंट्रोल के लिए कौन कौन सी होंगी? मैम सिस्टम कॉल्स क्या होता है मैम? अभी तो बताया। मैम समझ नहीं आया मैम। आपने कितने बजे क्लास ज्वाइन की थी अर्जुन? मैम 4 बजे मैम, अभी आप बता रहे थे ना मैम ये वाला। हाँ, तो मैं शुरू में इसका बता चुकी थी इंट्रोडक्शन सारा। अब आप गूगल से पढ़ के मुझे बताओ या कहीं से कि सिस्टम कॉल क्या लिखा हुआ है, मैं यस या नो बताऊंगी आपको। यस मैम बताता हूँ मैम। हाँ जी। मैम a programmatic way for a computer program to request services from operating systems it runs on. तो यही तो मैंने सारा एग्जांपल अभी समझाया। इन ऑर्डर टू execute the command, it goes through the operating system. There is the interface which will perform the functions and then it will return the reply back to the user. और उसका पूरा हमने प्रोग्राम कंट्रोल, इनपुट आउटपुट, फाइल सिस्टम, सिक्योरिटी, ये सब के टर्म्स में बात करी है। तो ये डेफिनेशन आपने जो पढ़ी है आप लिख लो कि ये सिस्टम कॉल होता है और ये एग्जांपल्स बुक में जो लिखे हुए हैं 61 पेज पे वो हमें करने होंगे। आपके 2 मार्क्स के आएंगे। राइट एनी 2 सिस्टम कॉल्स फॉर प्रोसेस कंट्रोल, लोड, एग्जीक्यूट, अबॉर्ट, एंड। और हमने कौन से फंक्शन देखे थे स्टूडेंट्स? फाइल मैनेजमेंट, उसके लिए सिस्टम कॉल्स, क्रिएट। आप फाइल क्रिएट करते हो
तो वो अंदर फाइल के लिए क्रिएट फाइल वाली सिस्टम कॉल भेज रहा होता है। डिलीट फाइल, ओपन फाइल, क्लोज फाइल, बहुत सिंपल है, इसलिए ये चैप्टर ऑनलाइन आसानी से हो जाएगा। फिर डिवाइस मैनेजमेंट के लिए क्या क्या होगा, वैसे ही नाम होंगे। रिक्वेस्ट डिवाइस, जब भी आप कोई डिवाइस ऑन करते हो तो उसकी रिक्वेस्ट नीचे डिवाइस ड्राइवर तक जाती है, हार्डवेयर तक। कौन लेके जाता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और जब आपका काम खत्म हो जाता है, आप वो शट डाउन करते हो, तो वो रिलीज डिवाइस की सिस्टम कॉल जाती है। सारे एट्रीब्यूट्स उसको मिलते हैं कि इसमें क्या क्या पॉसिबल है, तो उसके लिए सिस्टम कॉल है गेट डिवाइस एट्रीब्यूट्स। और जब आपको नई फीचर्स ऐड करने होते हैं तो आप जो कर रहे होते हो तब उस समय डिवाइस के सेट एट्रीब्यूट्स वाली कमांड जाती है, सेट डिवाइस एट्रीब्यूट्स। फिर है इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। सारी इंफॉर्मेशन, गेट टाइम और डेट, सेट टाइम और डेट, इसी तरह से कम्युनिकेशन बुक में सारी हैं, आपको जो जो याद करनी हो एक दो, इट्स योर ओन गुड चॉइस। send receive messages, okay, so this is about the system calls. Again, your chapter talks about different types of OS which we had just now studied. We had talked about single user. What example I gave on that single user OS? किसी को नहीं याद सिंगल यूजर ओएस का क्या एग्जांपल दिया था? DOS, हाँ जी। उसके बाद मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आने शुरू हो गए। More than one users can work simultaneously. It allows each user to interact with the computer. आपका यूनिक्स, आपका सन सोलारिस, विंडोज एनटी, मैक ओएस, ये सब फिर मल्टी यूजर होने शुरू हो गए। मल्टीटास्किंग, कॉन्करेंट प्रोसेसिंग, ये सब वर्ड्स कॉन्करेंट, पैरेलल प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस भी आ गए हैं अब तो। क्लाउड कंप्यूटिंग किस किस को आती है? हाँ, AWS पे किसी ने काम किया है? किसी का अकाउंट है AWS का? नो मैम। ओके। क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है, किसी को पता है? बिग डेटा चल रहा है आजकल, ये सब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अच्छा, पहले तो ये सारे कॉपी कर लो। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स ये नहीं आते होंगे आप लोगों को, बाकियों के तो आते हैं आपको, ये सारे मल्टी यूजर सभी लिख सकते हैं इसमें, यूनिक्स वगैरह ये तो सबको आते हैं। मैक है किसी के पास विंडोज है, किसी के पास यूनिक्स है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिसमें
आपके जैसे कि शेयर मार्केट या साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, न्यूक्लियर, all these things which are very sensitive and where deadlines matter a lot, even minutest of second can create havoc if the deadlines are not met. So these are the real time OS examples. RTX VX works like that. Then I talked about distributed operating system. It is to manage the workload between different machines, load balancing and all. You will find a lot of data over this in your book as well as on the net. So you should not fall back upon any other option. Once you are sitting in front of the system, you can complete the notes about all these types of operating system. Anything you can be asked. How it is processing parallelly, pipeline system you have already seen, real-time systems have distributed systems. So your book, let's see. I hope everything is covered now. First chapter is almost covered. System calls. Acha, the functions they are saying now. The whole chapters, the following chapters are on this only. Device management, process management. We will talk about them. First, you complete these notes. As I said, multiprocessor system have three main advantages. कौन से पेज नंबर पे है ये? सब बताओ मुझे, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के थ्री एडवांटेजेस कौन कौन से हैं? सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में. राइट थ्री मेन एडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम. मैम किसी को नहीं मिली? मैम बेटर परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड fault tolerance and scalability. स्केलेबिलिटी. आप कहाँ से पढ़ रहे हो, नेट से? मैम बुक. मेरे पास तो कुछ और लिखा हुआ है बुक में. इंक्रीज थ्रूपुट. मैम वो एक पुरानी बुक थी, मैं उसके अंदर थोड़ा सा ओएस का पार्ट था तो वो लेके बैठा था. ठीक है, बुक भी तो मैंने कल भेजी है, उसमें से मार्क करते जाओ ना. पेपर तो इसी से बनेगा बेटा. जी मैम. या तो ये सीधा सीधा ना लिखा होता तो मैं ना कराती. इंक्रीज थ्रूपुट कर लो कृष्ण आप, के इसका जब इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रोसेसर्स, ऑब्वियसली जब एक काम को ज़्यादा लोग करेंगे तो जल्दी हो जाएगा और अच्छा वर्क भी ज़्यादा होएगा, तो इसको इंक्रीज थ्रूपुट कहते हैं. इकोनॉमी ऑफ स्केल. और जो आपने पढ़ा था ना स्केलेबिलिटी, वो यस मैम. होती है कि धीरे धीरे आप और चीज़ें ऐड करके उससे ज़्यादा काम करवा सकते हो. स्केल अप और स्केल डाउन, जैसे कि क्लाउड इस समय जो चल रहा है वर्ल्ड में, उसको स्केलेबिलिटी बहुत बड़ा उसका एडवांटेज है. ओके, स्केलेबिलिटी वर्ड, पोर्टेबिलिटी वर्ड आपको सबको कंप्यूटर साइंस के बच्चों को अच्छे से आने चाहिए. रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है कि अगर एक खराब हो गया तो दूसरा चलता रहेगा, आपका सिस्टम डाउन नहीं होगा. ठीक है, ये तीन आपके सीधे सीधे क्लियरली लिखे हुए हैं.
कर रही है। तो इंक्रीज रिलायबिलिटी के नीचे दो वर्ड्स और लिखे हुए हैं, ग्रेसफुल डिग्रेडेशन। क्या होता है ये? इंक्रीज रिलायबिलिटी इन द सेंस कि अगर एक डाउन हो जाए प्रोसेसर तो दूसरे काम करते रहेंगे, तो आपको इससे सर्विस मिलती रहेगी जिस प्रोपोर्शन लेवल पे आपको मिलनी चाहिए। इसको कहते हैं ग्रेसफुल डिग्रेडेशन। It's very clearly written, increased reliability of a computer system is critical in many applications, और सभी applications में है। The ability to continue providing, ठीक है, gracefully degrade हो रहा है, वो एकदम से बंद नहीं हो रहा। This is what is called to continue providing service proportional to the level of surviving hardware is called graceful degradation. Fault tolerant systems भी पता ही है सबको कि some systems perform non-stop, they go beyond graceful degradation because they can suffer a failure of any single component and still continue operation. Why? Because they have got multi-word with them. एक ही चीज को उनको काफी सारे प्रोवाइड किए गए हैं, तो इस वजह से बिल्कुल भी सिस्टम बंद नहीं होगा, आपका फॉल्ट वो हैंडल करता रहेगा। Obviously then you will shut down and clear the fault and make it work again. So these are the words which are written in blue color in your course, followed by the last thing which is called the different functions. जैसे कि मैंने बताया अभी पूरा चैप्टर आएगा हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट पे, उस पर आपको इतना कुछ पढ़ना होगा कि आप नोट्स अभी लिखो ना लिखो, उस समय आप पूरा पेज लिख पाओगे कि शेड्यूलिंग कैसे करता है प्रोसेस, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स कौन कौन से होते हैं उसके, आपको उनके न्यूमेरिकल्स भी करने पड़ेंगे, उनका प्रोग्राम भी बनाना पड़ेगा। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट भी आपको सारा पूरा फ्रेगमेंटेशन, पेजिंग, ये सारी स्कीम्स अभी पढ़नी है, जैसे कि होल्स कैसे बनते हैं उसमें और उसको एलोकेट कैसे होते हैं। इसलिए अभी आपको ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब चैप्टर पूरे पढ़ लोगे सारे एंड में, तो इन चीज़ों के ऊपर आपके खुद के हाथों से ही अपने आप फटाफट से नोट्स निकलते जाएंगे कि इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें ये था, और आप खुद ही पूरे पेज लिख पाओगे। आपकी कोई और क्लास शुरू हुई है? मैम फिजिक्स डीएससी की हुई थी। किसकी बेटा? मैम डीएससी क्या लिया उसमें आप लोगों ने? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हाँ जी, मैम एसई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कौन पढ़ा रहा है? मैम डॉक्टर अंशिका मैम। अंशिका मैम पढ़ा रही हैं? यस मैम। ओके, सेकेंड ईयर हो ना आप लोग? यस ठीक मैम। है, हाँ जी। तो बस इस चैप्टर में हमारा, मैंने जैसे कहा था, मैं अभी वो लिखवा दूंगी आपको, वो चीज आप लिख लीजिए, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरप्ट एंड ट्रैप। What is the difference between? Then I will leave you. मन तो मेरा 2 क्लासेस लेने का था, बताओ पढ़ाती जाऊं इसके बाद सेकंड चैप्टर भी करा दूं? नहीं मैम, नहीं अच्छा मैम। ठीक है, तो फिर ये पढ़ के रहना नेक्स्ट क्लास तक, किसी को कोई डाउट होगा तो वो पूछ लेगा। लिखो, an Okay, ma'am. interrupt is something generated by the hardware. Interrupt is something generated by the hardware.
Next line, interrupt is a signal requesting the CPU requesting the CPU to interrupt its current activities in order to attend to the It is a signal requesting the CPU to interrupt its current activities to attend to interrupting devices needs. ठीक है, जो भी हम कीज प्रेस कर रहे हैं ये सिर्फ एक सिंपल इंटरप्ट है कि वो जो भी कर रहा है इस समय उसको थोड़ा सा छोड़ के ये वाली की प्रेस को बाइनरी में कन्वर्ट कर दे और यूजर को सेटिस्फैक्शन के लिए उसका स्क्रीन पे मॉनिटर पे दिखा दे। तो ये कोई ट्रैप नहीं हो गया, वो फंस नहीं गया, बस अपने काम से, जैसे हमने लास्ट सेमेस्टर में 3 तरह के इनपुट आउटपुट देखे थे, याद है? प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, इंटरप्ट इनिशिएटेड और डीएमए। इनमें से एक आया भी है ना, प्रोग्राम्ड आया भी था एग्जाम में। व्हाट इज प्रोग्राम्ड आईओ? शॉर्ट नोट्स, अगर किसी ने वो क्वेश्चन करा होगा तो लास्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का था वो क्वेश्चन। ठीक है, यहां तक लिख लिया कि इंटरप्ट क्या होता है। सो ये सिंक्रोनस होंगे कि एसिंक्रोनस होंगे? कोई कभी भी की प्रेस कर सकता है कि एक फिक्स टाइम पे ही करता है? कभी भी कर सकता है। तो ये सिंक्रोनस होए कि एसिंक्रोनस होए? एसिंक्रोनस। ठीक है, दे आर एसिंक्रोनस। इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि ट्रैप्स विल बी सिंक्रोनस, कि आपने जहां पे प्रोग्राम के कोड में गलती करी बार बार वो वहीं अटकेगा। डिवीजन बाय जीरो करने की कोशिश कर रहे हो, इनवैलिड मेमोरी एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, वो ट्रैप हो जाएगा, वहां फंस जाएगा। तो इंटरप्ट्स को कहते हैं दे आर एसिंक्रोनस। मतलब they don't happen at predictable places in the user code. ठीक है, अब ट्रैप लिख लो क्या होता है। इससे पहले ये लिख लो कि ये दो तरीके के होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ठीक है, इंटरप्ट्स आर बोथ टाइप्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब ट्रैप क्या होता है? इट इज एन एक्सेप्शन इन अ यूजर प्रोसेस। For example, division by zero, invalid memory access, okay, it is an abnormal condition which is usually an error। आप जब एरर ठीक करते हो तभी वो प्रोग्राम आपका आगे चलता है।
And mostly traps are, it is what? Asynchronous or synchronous? Synchronous. ठीक है, जिस लाइन पे आपकी एरर आई होगी वहीं पे ही it will occur again and again at the same time जब तक आप ठीक नहीं करोगे. Trap will occur at exact the same point of the program execution in the same machine state and the same data. Okay, same place पे ही आता है. अगर आप सेम मशीन पे सेम डेटा स्टेट पे काम करते जाओगे तो वो बार बार वहीं फंसेगा जब तक आप उसको ठीक नहीं करोगे. ट्रैप्स हमेशा ही सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होते हैं, ये कभी भी हार्डवेयर नहीं होते. ठीक है, लास्ट लाइन है, अ ट्रैप इज अ स्पेशल काइंड ऑफ इंटरप्ट referred to as software interrupt. अब नेक्स्ट क्लास कब लोगे? अंशिका मैम की कितनी हुई है? एक ही हुई। पहली थी, बस इंट्रोडक्शन दिया था. एक क्लास। अच्छा, कितने बजे लिया था? मैम 8:30. मॉर्निंग में 8:30? यस मैम. वाओ, उठ गए थे आप लोग? जबरदस्ती उठे. चलो, इस समय तो ठीक था ना, अभी धूप में, आज तो अच्छी धूप निकल आई है, मतलब मैं तो दिल्ली में हूँ. आधे बच्चे तो कंबल में ही थे. अरे मैं सुबह से ड्यूटी कर रही हूँ, कॉलेज में थी मैं कौन सा फ्री बैठी थी. घर आके अपना बस ये करके आपकी क्लास ली है मैंने. हमें तो एग्जाम की ड्यूटीज भी तो करनी है, फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम चल रहे हैं. नहीं तो मैं मॉर्निंग हम एग्जाम के बाद ही ले लेते हैं. क्या बेटे? इन क्लासेस एग्जाम के बाद ही स्टार्ट कर देते हैं. ऐसे नहीं कर सकते ना, ऐसे नहीं कर सकते. मैम कॉलेज रीओपन कब होगा? मेरे ख्याल से ये जब है फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स खत्म है ना 26 जैन को, ये मैं नहीं 28 को भी उनका तो मैं. मुझे लग रहा है अगर जो आउट ऑफ स्टेशन स्टूडेंट्स हैं उनको आना है वापस, बट अगर जल्दी खुल गया तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि रूम्स चाहिए ना उनको पढ़ाने. जैसे आप लोगों को हुए थे एग्जाम्स तो सेकंड सेम चला गया था ऑनलाइन मोड में, तो आपके पूरे एग्जाम्स के टाइम चला था ना उनका ऑनलाइन, तो इसी तरह से आपका भी ऑनलाइन चलेगा. ये आई डोंट नो फॉर श्योर. तो कितने बच्चे गए आउट ऑफ स्टेशन? बहुत गए हैं. ओपन टिकट्स हैं सबकी? चलो, आई विल स्टॉप शेयरिंग. ठीक है, यू कैन सेंड मी योर अटेंडेंस देयर. और बताओ फिर नेक्स्ट. वीडियो ऑन करनी थी क्या? हाँ, अटेंडेंस में वीडियो ऑन करनी थी क्या? किसको वीडियो ऑन करना है? मैम कुछ नहीं मैम, अटेंडेंस होगी मैम. नहीं, भेजो ना व्हाट्सएप पे, भेजो मुझे अपना नाम और रोल नंबर भेजो. ठीक है, फिर व्हाट्सएप पे डिस्कस करके नेक्स्ट क्लास रख लेंगे हम, या तो अभी बता दो कब लेनी है. कल इसी टाइम पे कर ले. ठीक है, तो सेम टाइम कल भी 3:30 से ले लेंगे क्लास. Okay, ma'am. चलो, थैंक यू सो मच. फाइन, आई कैन सी द अटेंडेंस कमिंग देयर. थैंक यू बेटा. ओके, बाय.